السلام علیکم ناظرین، پروگرام وارننگ شو میں رؤف طاہر، گل نوخیز اختر اور سعدیہ آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آج کی وارننگ ہے، چیچا وطنی میں شیر کی دھاڑ، نیو یارک وزیراعظم ان ایکشن، کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکلنے والا ہے، لالو پرساد کی دہائی، بھارتی فوج پاکستانی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بھارتی اعتراف، چین مڈ آٹم فیسٹیول، چین میں 2 کلو وزنی کیک کھانے کا مقابلہ، ٹرک آرٹ، آج کی تصویر، آج کی کتاب، تاراج صوفیہ بیدار اس کی رائٹر ہیں اور ناظرین اس کتاب کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے چیچا وطنی میں شیر کی دھاڑ یعنی مسلم لیگ نون کی فتح کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا ہے اور یہاں پر یہ فتح کس انداز سے سیلیبریٹ کی جا سکتی ہے اور مسلم لیگ نون کو اس فتح سے کتنا فائدہ ہوگا۔ رؤف صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چیچا وطنی میں مسلم لیگ نون کی جیت نے بہت سارے لوگوں کو حقیقت سے آشنا کر دیا ہے؟ میرے لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے سعدیہ، نوخیز اس لیے کہ جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے نا 2013 کے عام انتخابات کے بعد، ایون میں جو کے پی کے میں ہوئے، جہاں خان صاحب کی اپنی حکومت ہے ماشاءاللہ صوبے میں، وہاں بھی پی ٹی آئی اکثر الیکشن جو تھے نا ہار گئی اور بڑے مارجن کے ساتھ ہاری۔ میرا خیال ہے ایک آدھ الیکشن جیتا انہوں نے اس پورے عرصے میں، 3 سال کے عرصے میں۔ لیکن یہ جو اس سے پہلے جو الیکشن ہوا تھا نا ابھی 2-3 ہفتے پہلے جہلم میں قومی اسمبلی کا اور ادھر بورے والا میں صوبائی اسمبلی کا، وہاں پہ بھی اگرچہ مسلم لیگ نون جیتی تھی لیکن مارجن کوئی بہت زیادہ نہیں تھا۔ مثلاً بورے والا کی صوبائی سیٹ پہ تو 1100-1200 کا مارجن تھا، بڑا ٹف مقابلہ ہوا، اور ادھر اپنا جہلم میں جو تھا وہاں پہ 8-9 ہزار کا مارجن تھا، لیکن 2013 کے الیکشن میں تو بہت زیادہ مارجن تھا۔ چنانچہ ایک تاثر یہ پیدا ہوا کہ جی مسلم لیگ ڈکلائن پہ جا رہی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ شاید کچھ میک اپ کر رہی ہے اور مقبول ہو رہی ہے، لیکن گزشتہ روز کے الیکشن نے پھر اس دعوے کی حقیقت بے نقاب کر دی۔ ابھی ایک دن پہلے پرسوں خان صاحب وہ بنی گالا میں جو دھاڑ رہے تھے اور پتہ نہیں پہنچو ساری دنیا سے پہنچو اور گل نوخیز اختر کے اور جنوبی افریقہ سے بھی پہنچو اور پتہ نہیں کہاں سے پہنچو، 24 سے پہنچنا شروع کر دو اور 30 ستمبر کو وہاں پہ پہنچ جاؤ، جس طرح سے چلے تیرے اور جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ پوری طاقت لگا دیں گے، تو کل اس پوری طاقت کے غبارے میں سے پھر ہوا نکل گئی۔ نوخیز یہ سیٹ جو تھی چیچا وطنی والی یہ پی ٹی آئی نے خالی کی تھی، 2013 کے الیکشن میں یہاں رائے حسن نواز صاحب جیتے تھے اور انہوں نے 88,000 ووٹ حاصل کیے تھے، 88,000۔ وہ اساتذے چھپانے کے الزام میں الیکشن کمیشن نے انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا، نااہل قرار دے دیا، تو اب ان کا بھتیجا جو تھا رائے مرتضیٰ وہ الیکشن لڑ رہے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، اور 2013 میں یہاں پہ مسلم لیگ کا کوئی امیدوار نہیں تھا، آزاد امیدوار تھے حاجی ایوب صاحب، تو انہوں نے ان کے 88,000 کے مقابلے میں 75,000 ووٹ حاصل کیے تھے، 75,000، ٹھیک ہے، تو وہ 13,000 کا ڈفرنس تھا اور یہ خاصا معقول ڈفرنس تھا۔ اور پیپلز پارٹی بھی تھی، اس کے تھے 9,585، 10,000 کہہ لیں۔ تو کل جو الیکشن ہوا ہے اس میں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تقریباً 25,000 ووٹ میرا خیال نیچے آ گئی ہے، اس لیے کہ اگر اس وقت 88,000 تھے اور کل 63,000 ہیں تو 25,000 کا فرق پڑتا ہے لگ بھگ، ہاں تقریباً 25,000 ووٹ جو ہیں وہ ان کے کم ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نے طفیل جٹ کو کھڑا کیا تھا، انہوں نے 76,000 ووٹ حاصل کیا ہے، گویا 13,000 ووٹ زیادہ ہے ان کے پی ٹی آئی سے۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے جی دلچسپ بات یہ ہے وہ بیچاری اگرچہ بہت پیچھے ہے، 15,000 ووٹ ہے اس کے، بھٹو کی پیپلز پارٹی اور بینظیر کی پیپلز پارٹی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے اس موقع پہ پیپلز پارٹی کو 15,000 ووٹ مل جانے کا مطلب ہے وہ سمجھے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 5,000 ووٹ زیادہ حاصل کیے ہیں 2013 کی نسبت، اصل الیکشن 2 قدم آگے تو بڑھے، 2 قدم آگے بڑھے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، انہیں بھی شامل پروگرام کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم عطاء الرحمان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وارننگ شو میں۔ عطاء بھائی یہ جو کل چیچا وطنی کا الیکشن ہوا ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں سر، خصوصاً اس حوالے سے کہ 30 کو عمران خان صاحب نے اپنی پوری طاقت کے مظاہرے کا اعلان کر رکھا ہے رائے بند کے گرد و نواح میں؟ جی تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کل کے الیکشن کو جو گزشتہ روز ہوا ہے چیچا وطنی میں؟
دیکھیں یہ ضمنی انتخابات ہیں اور ضمنی انتخابات میں عام طور پر تو کہا جاتا ہے کہ حکمران جماعت جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کرتی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں جس طرح کامیابیاں ملی مسلم لیگ نون کو، اور پھر مسلسل سوائے لودھرا کے ایک انتخابات کے ہر جگہ پر حکمران جماعت مسلم لیگ نون کو جو کامیابی مل رہی ہے، کہیں تھوڑے مارجن کے ساتھ کہیں درمیانے مارجن کے ساتھ، اس سے تین چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عوام پاکستان کے جمہوریت کا تسلسل چاہتے ہیں، جمہوری نظام کا تسلسل چاہتے ہیں، اور وہ اس میں کے ساتھ پوری طرح اپنے آپ کو انوالو رکھے ہوئے ہیں۔ احتجاجی مظاہرے چاہے جتنے ہوتے رہیں، سیاسی جماعتیں چاہے میدان میں آ کے جس طرح کے بھی نعرے بلند کریں یا احتجاج کریں، عوام کا جمہوری نظام کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ پوری طرح قائم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پالیسیوں کا بھی تسلسل چاہتے ہیں، تو وہ ایک جماعت جو ایک باقاعدہ اپنے منشور پر عمل کر رہی ہے، اس کا اختلاف کر رہی ہے، اور وہ 2018 تک اپنے منشور پر پوری طرح عمل درآمد کرنے کے وعدے پر قائم ہے، کم از کم اپنے دعووں کی حد تک، اور کہیں عمل سے بھی نظر آتا ہے۔ تو عوام چاہتے ہیں کہ وہ پالیسیوں کا جو تسلسل ہے وہ بھی جاری رہے، اور اگلے انتخابات تک ایک جماعت کو پورا موقع دیا جائے کہ وہ اپنے منشور پر عوام کو عمل کر کے دکھائے، اور پھر عوام فیصلہ کریں کہ اس کو آئندہ کے لیے برسر اقتدار لانا ہے یا نہیں لانا۔ عطاء الرحمان صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا اور ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دینے کا۔ رؤف صاحب ایک تو بات عطاء الرحمان صاحب نے کہی پالیسی کا تسلسل، لیکن پاناما لیز کے بعد بھی جو میرے خیال ہے اپریل کے پہلے ہفتے میں وہ منظر یہاں پہ آئی تھی، اس کے بعد بھی جتنے الیکشن ہوئے مسلم لیگ نون نے وہ الیکشن تو گویا پاناما جو ہے وہ پاناما اعمال ثابت ہو گیا نا۔ تو میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، سوری آپ سے، کہ چودھری سرور صاحب کا آپ نے بیان سنا؟ سابقہ چودھری سرور صاحب ہمارے وہ گورنر انہوں نے، میں نے کہیں پڑھا ہے اور میرا خیال ہے شاید یہی پڑھا ہے میں نے، بالکل ٹھیک پڑھا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نتائج تسلیم کرتے ہیں۔ نہیں کیا کریں، فوج کی نگرانی میں الیکشن ہوا ہے میرے بھائی، بری بات ہے، نتائج تسلیم ہی کر رہے ہیں۔ فوج کی نگرانی میں الیکشن ہوا ہے، 1200 فوجی تھے، وہ اندر بھی موجود تھے، پولنگ یعنی اسٹیشن کے اندر بھی موجود تھے، لیکن دھاندلی تو پھر بھی کوئی جن بھوت کوئی نہیں، چودھری صاحب نے مان لیا ہے، لیکن کیا کپتان صاحب بھی اسے مانیں گے؟ اس کا انتظار کریں، ماننا نہیں چاہیے، بری بات ہے، ایک روایت کا قائم ہوئی ہے کہ وہ برقرار رہنی چاہیے کہ نہیں دھاندلی ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے یہ نہیں پتا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی شور اٹھا نہیں ہے، وہ ایک دم سے الیکشن کے بعد وہ ابھی صدمے کی کیفیت ہے، نکلنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے۔ خان صاحب جو ہے نا، ایک تو وہ ہے نا کہ خال سے نے جو گال کہتی سو قید تھی، اور دوسرا یہ کہ مظفر اقبال صاحب کا شعر جو ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ تو خان صاحب آپ دیکھیں نا، ان کے وہ جو الزامات ہیں 35 پنکچر اور چودھری افتخار کی سازش اور رمدے صاحب کی سازش اور پتہ نہیں کیا کیا سازش اور اردو بازار کے جعلی بیلٹ پیپر، وہ سارے جوڈیشل کمیشن نے الزامات مسل کر دیے، بلکہ انہوں نے پیش ہی نہیں کیے، ثبوت ہی نہیں تھے، اس کے باوجود وہ دہراتے رہتے ہیں قائم بھی رہو اس پہ ظفر۔ تو انتظار کریں، لیکن میں خیال کیونکہ فوج ہے نا، فوج کی موجودگی میں ہوئے، لیکن پتہ نہیں خان صاحب کی وہ گفتگو دھرنے کے دنوں کی فوجی جرنیلوں کے بارے میں انہوں نے جو گفتگو کی تھی ٹیلی فون پہ، وہ موجود ہے، وہ بھی موجود ہے لوگوں کے پاس، وہ تو ہم سنا بھی نہیں سکتے، ہم تو یہاں وہ سنا بھی نہیں سکتے، وہ ہم سنا نہیں سکتے۔ لیکن ابھی ہم بات کریں گے کچھ پرائم منسٹر کے دورہ امریکہ کی، نیو یارک میں انہوں نے بہت اہم ملاقاتیں کی ہیں اس حوالے سے کہ کشمیر کے موقف کو اور زیادہ اجاگر کیا جائے اور مؤثر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ رؤف طاہر صاحب، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کی ان میٹنگز کو، جو حالیہ میٹنگز پرائم منسٹر کی؟ پورے ایکشن میں ہے جی ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب، ٹھیک ہے، اور ایک ایک لمحہ جو ہے اسے وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں کشمیر کاز کے لیے، اور پاکستان کا مبنی بارک موقف جو ہے اسے بیان کرنے کے لیے، اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت جو ہے اس کے اس کو لڑنے کے لیے۔ کل انہوں نے جان کیری سے ملاقات کی ہے، سیکرٹری خارجہ، ہم تو وزیر خارجہ بولتے ہیں نا، وہاں سیکرٹری خارجہ کہتے ہیں انہیں، ان سے ملاقات کی ہے، سعودی ولیعہد سے ملاقات کی ہے، برطانیہ کی ان کے ہم منصب جو ہیں تھریسا میں، ان سے ملاقات کی ہے، شاید نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور پوری شدت کے ساتھ نوخیز اختر انہوں نے مسئلہ کشمیر کو بیان کیا۔ اچھا، اس کی شدت کا اندازہ پتہ کس بات سے ہوتا ہے؟ ویسے بھی ہماری کسی سے لڑائی ہو نا، جب تک دوسرے گھر سے آواز نہ آئے چیخوں کی، یا کسی کو آپ نے مارا ہو تو جب تک وہ چیخے نا تو بندے کو تسلی نہیں ہوتی، بندہ کہتے نہیں یار انہوں چپیڑ صحیح نہیں بجی،
वो चपेट सही लगी है, इसीलिए आपने मोदी साहब का नया बयान सुना। मोदी कह रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, मोदी साहब का नया बयान आया जी कि गवर्नमेंट ने बयान दिया है कि वो जो सार्क कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान में, ये जो नेक्स्ट नवंबर में, उसमें उन्होंने कहा जी हम मोदी साहब जो हैं वो तशरीफ नहीं लाएंगे, और ये है वो चपेट का असर जो वहां तक पहुंचा। और परसों भी उनकी जगह हमारे तो वज़ीर आज़म माशाल्लाह अपना केस पेश करेंगे ना आलमी फोरम पे, मजबूत केस है। और उन्होंने सुषमा स्वराज को भेज दिया। हाँ जी, वो उनकी भी तू जा, यानी प्राइम मिनिस्टर की जगह उन्होंने उन्होंने अपने वज़ीर खान वो इसीलिए रखा हुआ है। इंडिया वालों को भी पता था ये अगर उन्होंने मोदी को भेज दिया तो वहाँ ये बेड़ा गर्क कर आएगा, तो उन्होंने तू बह जा, चुप करके बह जा बाबा जी, असी भेज देने। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जी जहाँ मसला कश्मीर इंडियन मुजालम का जिक्र किया बड़ी तफसील के साथ। अच्छा, उन्होंने खतूत भी लिखे हैं। जो परमानेंट मेंबर हैं सलामती कौंसिल के वीटो पावर जिन्हें हासिल है, उन्हें बाकायदा खतूत लिखे उन्होंने। इससे पहले बान की मून को 2 खतूत वो लिख चुके थे और उन्हें अपनी जिम्मेदारी से आगाह किया है। और जॉन कैरी को तो उन्होंने बतौर खास ये तवज्जो दिलाई है कि भाई क्लिंटन साहब ने वादा किया था, पुराने वादे तो अपनी जगह ना कि करारदाद किसको क्लिंटन साहब का क्या वादा था जी? यार नौखेज अख्तर तुम बहुत पढ़ते हो। नहीं बता रहे, मेरा ख्याल है मुझे नहीं पता, यकीन करें भूल जाता आदमी। वादे तो आपको पता मुझे भूल जाते हैं, क्यों था दिया जी बिल्कुल वादा तो आप याद रखिए। ये मेरी प्रॉब्लम है। क्लिंटन साहब का वादा में आपको याद होगा कि हमारे वो डिक्टेटर ने एक एडवेंचर किया था कारगिल में जी, जिसपे खुद फौज की क़यादत में हमीद गुल ने असलम बेग ने कहा कि पाकिस्तान की फौज की तारीख की ये सबसे इल कंसीव्ड और इल प्लान्ड मूव थी, एडवेंचर था जो उन्होंने किया मौसूफ ने। तो उसके बाद फिर ये है कि खतरा मौजूद था जी कि ये जंग जो है ये खुदा न खासा फैल ना जाए। 2 एटमी ताकतें हैं खित्ते में, दरमियान में कोई हजारों मील का समंदर भी नहीं है जो रूस और अमेरिका के दरमियान था, ठीक है। तो क्लिंटन को भी तशवीश हुई, तो क्लिंटन साहब ने भाग दौड़ की। अपना जनरल जिन्नी थे उनके जी, सेंटकॉम के सेंट्रल कमांड के सरबराह, वो तशरीफ लाए, जिन्हें हम जनरल जैनी लिखते थे। हाँ, जनरल ZENNIE, उर्दू में हम जैनी लिखते हैं, जैनी भी लिखते हैं, जिन्नी भी बोलते हैं अमेरिकन उन्हें। तो वो उन्होंने किताब लिखी है बैटल रेडी, उसमें उनका जिक्र किया है। अच्छा, ये मुलाकात जो थी ये 4 जुलाई को ही, जिस दिन अमेरिका का नेशनल हॉलिडे थी, इसके बावजूद क्लिंटन साहब जो थे, मैं माजरा चाहता हूँ वो वादा दरमियान में रह गया। हाँ, वो उधर आ रहा हूँ ना। तो उसमें क्लिंटन साहब ने ये वादा किया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि हम मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, और इसलिए ये जो इस वक्त जो आग भड़क रही है इसे ठंडा करने की कोशिश की जाए। तो ये जॉन कैरी साहब ने उधर तवज्जो दिलाई, जॉन कैरी को मियां साहब ने जॉन कैरी की तवज्जो, और मेरा ख्याल है उन्होंने थेरेसा मे से भी कहा होगा, बरतानवी वज़ीर आज़म से भी, कि बीबी ये आपके आबाओ अजदाद जो थे ये उस एजेंडे को अनफिनिश छोड़ गए थे, तकसीम के एजेंडे को। तो बराए मेहरबानी बरतानिया में भी खुसूसी जिम्मेदारी याद होती है, बिल्कुल, वो इसमें अपना किरदार अदा करें। ये तो मेरा ख्याल है जी पूरा प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो पूरा मिशन लेके इस दफा उनका एजेंडा यही है कश्मीर का। और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म से भी उन्होंने मुलाकात की है, न्यूजीलैंड के सरताज वीसा एक्टिव है जी माशाल्लाह। अच्छा, एक और बात है, ये हमारे यहाँ मुसलसल ये प्रोपेगेंडा किया जाता है और जाहिलों वाला प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी वज़ीर खारजा कोई नहीं। भाई आइन में प्राइम मिनिस्टर को 4-5 एडवाइजर रखने का इख्तियार हासिल है, विफाकी वजीर के ओहदे के बराबर, चुनाचे इनका ओहदा विफाकी वजीर के बराबर है। फातिमा साहब का ओहदा वजीर ममलकत बराए अमूर खारजा के बराबर है। वो जहाँ जाते हैं वजीर खारजा के तौर पे जाते हैं, वो उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, उसी हिसाब से वो बिहेव करते। वो भी बाबा जी बड़े एक्टिव है माशाल्लाह, वही तो बात में अपनी जगह लगे हुए हैं। वो हमारे सफारतकार जो है मलिया लोधी और वो एजाज चौधरी साहब और बाकी लोग, इंडिया को वक्ता तो डाला साहब ने। आप खुद बड़े एक्टिव हुए हैं, मैं तो ये देख रहा हूँ। इंडिया को इस वक्त मुसीबत में डाला हुआ है और इंडिया में खुद इंटरनली ये बहस छिड़ गई है कि आखिर अब क्या किया जाए, कश्मीर के इशू को किस तरह से आगे प्लीड किया जाए ना। इस हवाले से हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर इस हवाले से क्या खबरें हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। पूरी दुनिया
जामे मिसाल, रिश्ता लाजवाब, पाक चीन दोस्ती के 65 सालों का तुर्रा इम्तियाज, 46 अरब डॉलर की लागत से सी पैक मंसूबे का आगाज, खत्ते की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा, मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, इंडस्ट्री और तवानाई समेत तमाम शोबों की तरक्की में कुलीदी किरदार अदा करेगा। सी पैक मंसूबे की तमाम सूबों तक रसाई से हर पाकिस्तानी इस्तेफादा करेगा। तरक्की और खुशहाली के इस अजीम मंसूबे से हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ में खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। सी पैक नाम है मुआशी इनकलाब का, जो कौमों की जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। आइए इत्तेहाद, यकजहती, मेहनत और इस्तेहकाम से सी पैक मंसूबे को कामयाब करें। सी पैक मंसूबा, ये रास्ता है कामयाबी का, ये जज्बा है दोस्ती का। प्लानिंग कमीशन, वजारत मंसूबाबंदी, तरक्की और इस्लाहात, हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम कुछ बात करेंगे, जहां हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के दौरा न्यूयॉर्क की और वहां पे कश्मीर के केस को हल करने के लिए उनकी काविशों की वहीं बात करेंगे। कुछ इंडिया के अंदर जो बहस छिड़ गई है और इस हवाले से लालू प्रसाद का एक बयान आया है कि मोदी की वजह से कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा और ये एक बहुत बड़ा बयान है। एक इंडियन की हैसियत से उन्होंने ये बयान दिया है और आप क्या देखते हैं कि क्या वाकई इंडिया ने मान लिया है कि लालू प्रसाद जो है ना बज़ाहिर तो एक मज़ाहिया सा किरदार है। सही बात है। लेकिन बात बड़ी सीरियस भी कहते मेरा दोस्त है, मेरे तो पा दो, लालू प्रसाद भी मेरे तो नहीं, यकीन करे मैं ये कहने वाला था। तो मैंने कहा आप कह दो, पा दो, है क्या आप तरदीद करके अल्लाह क्या गुनाहगार हो। मैं कह रहा हूँ, मैं कबूल करता हूँ। अच्छा, तो लालू प्रसाद साहब जो है ना जी, ये बिहार में बड़े पॉपुलर हैं, ठीक है। वैसे हर पास से लगते हैं, एलएल भी है वैसे। अच्छा। एक मौके पर डिस्क्वालीफाई था, अपनी बीवी को अनपढ़ थी, रबड़ी देवी, उन्हें वजीरा बना दिया बिहार। राबड़ी नहीं है, आपको राबड़ी है, राबड़ी का। और मुझसे कहते दोस्ती ने भाभी के नाम का आपको कितना ख्याल है कि नाम सही बोलना चाहिए। थैंक यू सर। मैं क्या कहूँ सर। तो उसके बाद फिर वो वजीर रेलवे भी रहे, जब हमारे शेख साहब थे ना वजीर रेलवे जी। और ये हमारे लालू प्रसाद, ये नहीं यार, ये ज्यादती है मेरे भाई। आप लालू प्रसाद से ज्यादती न करें, वो जानवर आदमी मेरे भाई, 2 नंबर ही नहीं करता। तो ये जानवर नहीं, जानवर आदमी है, उसकी अपनी ताकत है बिहार के अंदर। उसने रेलवे को वाकई यानी एक जिंदा रेलवे बना दिया। और आप ख्वाजा साहब रफीक को तो लालू प्रसाद कह सकते हैं, वो लाल वेली वाले को नहीं, वो तो जाली काम कर रहे थे ना। कभी ट्रेनों का नाम बदल के, वही ट्रेनें 5 इनका नाम भी बदल देते हैं। इनका नाम क्या रखेंगे? तो लल्लू प्रसाद। लल्लू प्रसाद, थोड़ा चेंज भी थोड़ा सा साथ मिलता जुलता अच्छा लगता है। हाँ, तो उसमें जनाब उन्होंने ये बात बहुत अहम की है सर लालू प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि देखो, लगता यूँ है कि ये जो है ना अपना चाय वाला मोदी अपने हमीद की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो ना इसके दौर में कश्मीर तो गया हाथ से, इसलिए कि वहाँ पे मूवमेंट जितनी जबरदस्त चल पड़ी है ना, जो इंडिजिनस मूवमेंट है यार, वो 9-10। मैंने आपको बताया नहीं था, बीबीसी के एक नुमाइंदे ने, जो पिछले हमारे प्रोग्राम में भी डिस्कस हुआ था, उसने कहा जी, मैंने एक फौजी से पूछा कि क्या ये काबू पालेंगे, उसने कहा जी ये नहीं रुकती, ये अब जो मर्जी फौज। और ये लालू प्रसाद का ये ऐसी अपने मुल्क के अंदर ना ऐसी ताकतें, जो ऐसे मेन ओहदों पे लोग होते हैं ना, ये आपको हकीकत बता रहे होते हैं। लालू प्रसाद ने ये बयान इसलिए नहीं दिया कि गवर्नमेंट से उसकी कोई मुखालफत है, हकायक यही है। हकायक ये है कि उनको भी नजर आ रहा है कि ये कब तक ये जबर का मौसम, वो उसका शेर है ना जी वसी शाह का, कि जबर का मौसम कब बदलेगा, जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। और कश्मीरी बदल गए हैं जी, कश्मीरी आप उठ खड़े हुए हैं, ठीक है। वो पाकिस्तानी झंडे लेके निकलते हैं और उन्हीं झंडों में अपनी लाशों को लिपटा के अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं जी। तो अब आप देखें कि बस पागलपन का दौरा पड़ा है वहाँ पे। कुछ लोग हैं पागल वहाँ पे, जो रिटायर्ड फौजी हज़रात, वो कहते पै जाओ देखी जाएगी। लेकिन वहाँ का एक और बड़ा अहम थिंक टैंक है, कॉन्फ्लिक्ट, क्या उसका नाम है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट, ये आज छा गई है भाई, बच्ची पढ़ने लगी है। नहीं, मैंने कहा इसने, यानी आपको नहीं आया, इसको आ गया है। उसने ये कहा है क़यामत के आसार है, ये जो है ना अपना वो जो स्ट्राइक की बातें करते हो कि जी वो स्ट्राइक कर देंगे और वहाँ कर देंगे और महदूद से जंग छेड़ देंगे और हवाई हमले कर देंगे। खुद को अमेरिका ना समझो, खुद को अमेरिका ना समझो, तुम अमेरिका नहीं हो, तुम इंडिया हो। 15 दिन से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकोगे इस सारी कश्मीर। हाँ भाई, वो आपको पता है, ये अगर आपने खबर वो नहीं पड़ी, इंडिया ने जो कह दिया है कि हमारी अगर पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो हम नहीं जीत सकते। ये तो 15 दिन
हाँ, उन्होंने कहा जी 15 दिन तक हम लड़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लड़ सकते। फौजी माहिरीन जो हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सोसाइटी के, उन्होंने ये एतराफ किया कि अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया की जंग हुई तो इंडिया की ये जो सारा मुश्किल अंग्रेजी वाला नाम है, इन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ 15 दिन से ज्यादा जंग नहीं लड़ सकते। और अपना नौखेद आप ये देखें कि वो बड़ा बम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने जो स्मार्ट बम बना लिया ना, वो महदूद, हाँ स्मार्ट बम, हाँ एक तो है ना जो तबाही वाला है, मिनी बम स्मार्ट बम बनाया है, जो बड़ी तशवीश है। ये पाकिस्तान की एक नई इजाद है। हाँ, जेब छुपा के रोशन चेहरा पाकिस्तान का। वो जो कोल्ड स्टार्ट की बात करते हैं ना, इधरों पे आ जाएंगे, इधरों बढ़ जाएंगे, ये सॉर्ट वैली है, जरा बढ़ के देखें। हमने भी ये कहा है कि जरा बढ़ के आ जाओ, हमारे इलाके में आ जाओ, फिर पुत्र अगर बच के चलेगा ना इन स्मार्ट बमों से, लाशें ही होंगी। तुम्हारे इलाके में कुछ नहीं कहेंगे, हमारे इलाके में आओ जरा, फिर देखते हैं स्मार्ट बम अपना सलूक क्या करते हैं। सलूक यहाँ आएंगे, बन के लितर मारेंगे हम लोग, लितर यू नो हार्ड फॉर्म ऑफ शूज, चित्रौल कह ले, चित्तर वो जो होता है हवालात में, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है, चित्रौल लितरौल लितर चित्तर लग पता जाएगा। थाने में इस तरह के होते हैं, तशद्दुद करने के लिए रखे हुए होते हैं। क्या आजा खुशी मोहम्मद, आजा मुलजम को बयान लाए। आप बिल्कुल मत डरे, मैं यहीं पे बैठी हूँ, कोई तशद्दुद नहीं होता आप पे। अच्छा रोक साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ, इतनी ज्यादा एक्नॉलेजमेंट भारत में देखने में आ रही है, जैसे कि लालू प्रसाद का बयान, उसके बाद भारतीय फौजी माहिरीन का ये बयान, तो क्या इस बात को एनालाइज कर लिया है उन लोगों ने कि वाकई कुछ चीजों पे जो क्लैशेस थे वो गलत थे? पागलपन होता है वैसे, मोदी पागल आदमी है, जुनूनी लोग होते हैं, लेकिन बनिया मेरा ख्याल है हिसाब किताब में भी माहिर है, उसे पता होता है। बुलबुलिया मारना अलग बात है, धमकियां देना, लेकिन उसे लग पता जाएगा, उसके पूरा पता है स्मार्ट बमों का भी और हमारे मिसाइलों का भी और हमारी ताकत का भी इंशाल्लाह। और हमारी ताकत का वाकई उन्हें अंदाजा है, तो इस बात का उन्होंने एतराफ किया है। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे दूसरी खबरों के बारे में। हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से तो हमने बात की, लेकिन अभी बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो के हवाले से, यानी कि कुछ ऐसी खबरों के बारे में जिन्हें आप नहीं जानते होते, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में उन्हें शामिल करते हैं एज अ वार्निंग। लेकिन ये वार्निंग आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। वैसे मुसलमान मुमकिन हद तक सबको एहतियात करके उन्हें इदारे को देनी चाहिए जो वाबस्ता हैं, ये एक सदा अहद है जो कहीं ना कहीं बहाल है। ये लिहाजा असा मौजूद अहद अपने मुल्क की दहशतगर्दी का खात्मा कर सकते हैं, ताकि वो सदका से रहे, उन्हें दहत से ना बदन जो सारे खिलाफ इस्तेमाल थे। मेहरबानी करके एहतियात की वजह उन्हें तमाम इदारे नाल मामलात की भी वजह जो सही साथी शोबे नाल वाबस्ता हैं, जो खल के खुदा नाल पूरे खलूसियत नाल सांस कर देते हैं। ये पैगाम वफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। वेलकम बैक नाज़रीन, अब कुछ हम वार्निंग्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, और सबसे पहली जो इस वक्त वार्निंग है ब्रेक के बाद, वो है चीन के हवाले से। हमारे पड़ोसी मुल्क चीन के हवाले से हमारे दोस्त भी हैं, वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे मिड ऑटम फेस्टिवल कहा जाता है, और उस फेस्टिवल की खास बात ये है कि वहाँ के एक बादशाह, जंगजू बादशाह ने जब एक लड़ाई को विन किया था, तो उसके बाद उन्होंने मून केक रेडी कराए थे, और वो मून केक उन्होंने अपने तमाम एहलकारों को, फौजी अफसरान को और ब्यूरोक्रेट्स को तोहफतन दिए थे। और इस फेस्टिवल की, ऑटम फेस्टिवल की सबसे खास बात यह है कि 3500 साल से ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। चीन के सबसे बड़े जो त्योहार हैं, दूसरे नंबर पर ये त्योहार है मिड ऑटम फेस्टिवल। मिड ऑटम फेस्टिवल बड़ा अच्छा फेस्टिवल होगा जी। अब क्या अंग्रेजी के लफ्ज़ कितने बोले थे, मून और मिड फेस्टिवल और वार और विन और पता नहीं क्या। कल मैंने पूछा, मैंने कहा खाना खाएंगे, कहती यस। मैंने कहा 5 रोटियां खाएंगे, कहने की नो। मैं हैरान रह गया इसकी इंग्लिश सुन के। लेकिन सारी खाने की बात हो रही है, जो सारा आपने बताया ना, खबर सारी जो सुनाई है,
اس کو سستے ترین الفاظ میں ذرا بیان کرتے ہیں. سستے ترین الفاظ یہ کہ اس فیسٹیول میں جو خاص بات یہ تھی، یہاں پہ ایک مقابلہ رکھا گیا جس میں مون کیک کھانا تھا 2 kg کا، یعنی 2 kg کا جو مون کیک بنایا ہوا 2 کلو کا کیک، 2 کلو کا کیک کہ 2 پاؤنڈ کا کیک، 2 کلو کا کیک، کلو گرام، 2 کلو کا کیک جس نے کھانا تھا اس نے اسے ونر قرار دیا جانا تھا اس فیسٹیول کے اندر. جو مقابلہ ہو رہا تھا یعنی مون کیک کھانے کا، وہ مون کیک ایک بندے نے پورا کھا لیا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہیوی کیک تھا. واہ واہ، لو جی یہ چائنا کا بٹ لگتا ہے مجھے کچھ. چائنا کا بٹ ماشاءاللہ کھانے پینے والا بندہ لگتا ہے نا، خوش خوراک ہے. اچھا آپ اس بٹ کی بات کر رہے ہیں، میں نے سمجھا وہ ایف فار بٹ والا انگلش والا. کیا رج گئے ہو، تھک گئے ہیں رجے تو نہیں رجے. اچھا 2 پاؤنڈ کا کیک کھا کے بندے نے انعام لینا، تو مطلب جتنے پیسے انعام میں ملنے ہیں اتنے تو اپنے ہسپتال میں لگ جانے ہیں پیسے. کیا فائدہ جی. اور یہ کسی 35 سال سے، یہ 3500 سال سے 3500 سال ہوتے بھی ہیں کہ نہیں؟ 3500 سال ہوتے ہیں، یعنی کہ اتنی پرانی تاریخ ہے. تائل زونگ یہاں کا ویریئر تھا. تو بڑی پرانی تاریخ ہے. اور اس وقت سے یہ خزاں میں یہ میلہ ہوتا ہے جس میں یہ لوگ کیک کھاتے ہیں. 15 ستمبر کو یہ کیک کاٹے جاتے ہیں اور یہ تحفے میں دیے جاتے ہیں. پورے چین میں یہ روایت، ہر جگہ پہ 2-2 کلو کا یہ کیک جاتا ہے. نہیں واقعی نہیں پورے چین میں کیک تحفتاً دیے جاتے ہیں اس روایت کو برقرار رکھنے کے لیے. 2 kg کے نہیں، 2 kg کے نہیں، مختلف. مطلب 1 پاؤنڈ کا بھی ہو سکتا ہے. آپ نہ زبان آپ کی للچائے، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. 1 پاؤنڈ کا بھی ہوتا ہے، 2 پاؤنڈ کا بھی ہوتا ہے. لیکن جو مین کیک جو وہ کھاتی ہیں، جو میں سمجھاؤں، جو بڑا کیک کھایا جاتا ہے جس پہ انعام دیا جاتا ہے، وہ 2 کلو کا کیک ہے. جن صاحب نے کھایا ہے وہ مقابلہ یہ جیت گئے ہیں. نہیں آپ کو یقین آ رہا تھا دیا، ان کی قبر دکھا دیں ان کو. 2 کلو کیک کھا کے پھر کہاں اس میں زندہ رہنا ہے. آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیک کھایا جاتا ہے. اگر شوق ہو تو مقابلے بازی میں بہت سارے ایسے مقابلے ہوتے ہیں دنیا میں جس میں کھانے پینے کا مقابلہ ہوتا ہے. محلے چ بندہ ہے جی، شگل چ نا مقابلہ اس نے رکھ لیا کسی سے کہ میں زیادہ کھاؤں. 3 کلو کڑائی کھا گیا. 3 کلو کڑائی؟ ہاں 2 کلو تو اس میں تھی نا گوشت کی، اور 1 کلو کی وہ لوہے کی اپنی کڑائی تھی. واپسی سے بھی کھا گیا. ہوتے ابھی ایسے لوگ. مقابلہ جیتنے کے لیے لوگوں میں امنگ ہونی چاہیے. آپ کو اس کا پتہ نہیں. میاں بیوی کو انگریزی سکھا رہا تھا نا، جسے آپ اسے سکھاتے ہیں پروگرام ختم ہونے کے بعد. تو انہوں نے بیوی صبح کہنے لگی، دوپہر میں کہنے لگی یہ ڈنر کر لو. انہوں نے کیا پاگل عورت، لنچ ہے، لنچ کا وقت ہے. انہوں نے کہا رات کا کھانا بچا ہو جائے، اس واسطے کہا ڈنر. واہ 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 واہ، یہ آپ نے وہی بات کی. ہمارے ایک جاننے والی ہیں، کہنے لگی ان کے بچوں کو سکھایا تھا پاپا 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 دکھایا نا. تو کہیں بچے نے کوئی شرارت کی تو شام کو اس کے باپ نے آنا تھا گھر، تو ماں جو ہے وہ بچے کو پاپا پاپا سکھایا اور اب اس کو ڈانٹ رہی ہے. کہنی تیرے پاپے نو آن دے، میں دس نہیں ہے. پاپے نے تیرے آن دے، تہاڈیاں کیئر لیسیاں سانو مار جاندیاں. انگریزی بن جاتی ہے اس طرح. انہوں نے نہیں اردو خراب کی ہوئی ہماری. مجھے تو ایسی انگریزی نہیں نا سکھائی، مجھے تو بہت ابھی تو کل ذکر کیا آپ کو، تو جرمن میں نے سکھائی ہے، ڈچ لینگویج آپ کو سکھائی ہے. ابھی آپ کو میں نے اشاروں کی زبان سکھانی ہے، پھر آپ کو میں نے چائنیز زبان سکھانی ہے. مجھے بے شک آتی ہے یا نہیں، لیکن آپ کو انشاءاللہ میں سکھاؤں گا. مجھے کتنے کام ہے، مطلب مجھے اتنی ساری زبانیں سیکھنی ہیں، لیکن نخیس صاحب کو یہ زبانیں سب سے پہلے آتی ہیں، مطلب ساری کی ساری آتی ہیں. مسئلہ ہی نہیں ہے نا. میں تو بولتا ہوں چائنیز حیران ہو جاتے ہیں. چائنیز بھی حیران ہو جاتا ہے. اچھا کچھ بول کے دکھائیں چائنیز. نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں. ینگ شنگ پیانگ میں نے ان کے سامنے کہا، کہنے لگی جی وہ خود حیران ہو گئے. بلکہ وہ میں نے پنجابی پوچھنا، کہنے بھائی جی یہ کی مطلب ہے. میں کہ اس کا مطلب صحیح، یہ جو مجھ سے مل رہے ہیں یہ 2 نمبر چینی ہے، اصلی بندے نہیں. بالکل انہیں حیران ہونا چاہیے تھا. اور اس وقت میرے پاس بھی ایک حیران کر دینے والی چیز موجود ہے آپ کے لیے. ناظرین بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آرٹ میں آپ کو حیران کرتی ہیں، لیکن ٹرک آرٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ عام دستیاب ہے. آپ کو سڑکوں پہ بہت ساری چیزیں، بہت ایک یونیک قسم کا آرٹ آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے. اس پر ایک اسپیشل پیکج تیار کیا ہے ہماری ریسرچرز ٹیم نے. آئیے یہ پیکج دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. بسوں اور ٹرکوں پر آرٹ کا مظاہرہ تو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا. ٹینکروں اور ٹرکوں پر سلیقے سے کھینچی گئی یہ رنگ برنگی لکیریں اور تصاویر ہماری تہذیب و ثقافت کو بھی اجاگر کرتی ہیں. ان رنگوں کو بھرنے والے فنکار اپنی ذہانت اور آرٹ کی بدولت گاڑیوں کو دیدہ زیب اور دلکش بناتے ہیں.
पाकिस्तान में नक्शो निगार का ये फन बहुत पुराना है। ट्रकों पर ये खूबसूरत नक्श निगारी करने वाले अपने ख्यालात का इजहार इस फन के जरिए करते हैं। आड़ी तिरछी मगर खूबसूरत लकीरें खींचने वाले ये फनकार ऐसा खूब काम कर रहे हैं कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। ट्रकों की सजावट जैसा मुश्किल काम किसी आम शख्स के बस की बात नहीं। ये काम कोई हुनरमंद पेंटर ही कर सकता है। ट्रक आर्ट से वाबस्ता लोग ये काम करके न सिर्फ सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर कर रहे हैं, बल्कि इसी तरह से ये लोग खोई हुई यादों की बहाली का फरीजा भी सरअंजाम दे रहे हैं। जी सुभान अल्लाह। रऊफ साहब हैरान हुए आप? हैरान, मैं परेशान हो गया, बल्कि मैं अनजान होने वाला था, लेकिन मुझे याद आ गया कि ट्रक तो कमाल चीज है जी। अभी तक आपने वो ट्रक चलता हुआ देखा होगा रोड पे, उसके पीछे अयूब खान की तस्वीर लगी हुई है, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। और ट्रकों के पीछे वो जो जुमले लिखे होते हैं, कफील भाई क्रिकेट का अजीम खिलाड़ी, तू लंग जा साड़ी। हाँ, वो हैदराबाद का खिलाड़ी था। हाँ, वो बेचारा साथी मरीज हो गया जी। हाँ, और अब जो भी गुजरता था ना कराची से बाया हैदराबाद, इधर पेशावर के होटल वगैरह पे कोई ठहरना ना। हाँ, तो कफील भाई क्रिकेटर जो थे। और जो जुमले लिखे होते हैं ट्रकों के पीछे, ये ट्रक कार्ड जो है, बाज़ का तो आप देखें सड़क पे जा रहे हो ना, रात को अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं तो एक ट्रक पूरे का पूरा उस रिफ्लेक्टर इस तरह के उस पे लगे होते हैं, पूरा ट्रक आपको नजर आ रहा होता है। ट्रकों पे लिखे हुए जुमले रऊफ साहब, सुभान अल्लाह। माँ की दुआ, एक ट्रक पे लिखा हुआ था जी, क्या दुपट्टा गिर पड़ा उठाऊं कैसे। कमाल का शेर, मैं हैरान रह गया। पहले तो मुझे लगा शायद किसी अंग्रेज शायर ने ये शेर कहा है, दुपट्टा बाद आगे, लेकिन जुबान सुन के फिर मुझे अंदाजा हुआ लोकल है। दुपट्टा गिर पड़ा उठाऊं कैसे, मामू दूर है बुलाऊं कैसे। और माँ की दुआ जन्नत में तू लंघ जा साडी खैर है, हारन देकर पास करें। और ये तो शुरू का जुमला है ना जी, पप्पू यार तंग ना कर। पप्पू यार तंग ना कर, इसकी क्या साइकी है? मतलब ये प्यार का जुमला है ना। मिसाल अगर कोई हारन दे रहा है उसे बार बार, तो वो उसको पीछे वाले को कह रहा है कि पप्पू यार तंग ना कर। वो लिखा होता था ना, बस में सफर करने से पहले गुनाहों की माफी मांग ले, हाँ, शायद तेरी जिंदगी का आखिरी सफर। हाँ, तो उधर हमारे हारनाबाद में एक बात कंपनी की इजारादारी थी, वो दूसरी बात कंपनी भी आ गई। तो बस ऐसी होती थी ना, थोड़ा सा धक्का लगाया तो वो दरवाजा खुल जाता था। तो राहत को वो थोड़ा धक्का लगाया, दरवाजा खुल गया। जहाँ लिखा था ना बस में सफर से पहले गुनाहों की माफी मांग ले, उन्होंने लिख दिया इस बस में सफर से पहले। और ये इस किस्म के शेर और ये हमारे साथ एक कॉलर हैं लाइन पे, और देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी नाज़िश बताइए क्या कहना चाहती हैं? जी मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ कि ये हमारा ना कि पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी है, पेश किया जाता है। हमारी ये जो आर्ट बसेस हैं वहाँ पे जर्मनी और इंग्लैंड में पेश की जाती हैं पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच नाज़िश, बहुत शुक्रिया। थोड़ी अधूरी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन खैर मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। एक्चुअली जर्मनी और इंग्लैंड में बाकायदा फेस्टिवल होता है जहाँ पाकिस्तान में से जो ट्रक हैं इसे आर्ट के सिंबल के तौर पर वहाँ पर पेश किया जाता है, और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रकों को वहाँ भेजते हैं। क्या बात है, यानी पूरी दुनिया में ये हमारा जो ट्रक आर्ट है वहाँ एग्जीबिशन लगती है। और ट्रक आर्ट में तो वो शेर हम भूल ही गए रऊफ साहब। कौन सा शेर? जो मेरा ख्याल है गालिब के बाद, उनके दीवान के बाद सबसे बड़ा शेर, ये पता नहीं शायर कौन है इसका। कौन सा शेर है? बड़ा आला शेर है, बहुत बड़ा शेर है। मैं अल्लाह माफ करे मैं सुना देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, वैसे इस मौके पे सुनाने वाला नहीं है वो, क्योंकि बहुत बड़ा शेर है। बुलबुल ने माली ने फूल तोड़ा बुलबुल को दिखा दिखा कर। माली ने फूल तोड़ा बुलबुल को दिखा दिखा कर। बुलबुल ने बाग छोड़ा आंसू बहा बहा। आंसू बहा। ये रोने वाला शेर है भाई, इस पे आप हंस रही हैं, कमाल है। मैं क्या करूं? बुलबुल, माली, शेर, ट्रक, आंसू 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 कम है। नाज़िम मैंने आंसू बहाने हैं, इसलिए यहाँ एक ब्रेक लेना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद मिलते हैं। आंसू मैं पहुँच लूंगी, तब तक मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पूरी
पूरी दुनिया में मिसाल, रिश्ता लाजवाब, पाक चीन दोस्ती के 65 सालों का तुर्रा इम्तियाज, 46 अरब डॉलर की लागत से सी पैक मंसूबे का आगाज। खत्ते की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, इंडस्ट्री और तवानाई समेत तमाम शोबों की तरक्की में कुलीदी किरदार अदा करेगा। सी पैक मंसूबे की तमाम सूबों तक रसाई से हर पाकिस्तानी इस्तेफादा करेगा। तरक्की और खुशहाली के इस अजीम मंसूबे से हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। सी पैक नाम है मुआशी इनकलाब का, जो कौमों की जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। आइए इत्तेहाद, यकजहती, मेहनत और इस्तेहकाम से सी पैक मंसूबे को कामयाब करें। सी पैक मंसूबा, ये रास्ता है कामयाबी का, ये जज्बा है दोस्ती का। प्लानिंग कमीशन। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपके फेसबुक मैसेजेस की बारी, और हमारे पास जो पहला फेसबुक मैसेज मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है सैयद जलानी का। सैयद जलानी लिखते हैं, क्या इमरान खान खाना जंगी की कोशिश कर रहे हैं? खाना जंगी? खाना नहीं, खाना जंगी। खाना जंगी भी होती है? खाना जंगी कौन सी होती है? ये शादियों में खाना खुलता है और खाना जंगी शुरू। हाँ, वो जो आपाधापी मचती है और वो एक दूसरे को, ठीक है। वो आप पूछ रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो खाना जंगी की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, इंशाल्लाह होगी भी नहीं, बस हमाकत कर रहे हैं, करने दे। हमाकत कर रहे हैं जी। सैयद जलानी साहब, होपफुली आपको जवाब मिल गया होगा। अगला हमारा जो मैसेज है वो है AH राहिल, और राहिल लिखते हैं, अस्सलामुअलैकुम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका शो बहुत ही अच्छा है। इतने बेहतरीन शो पर आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और गुले नौखेज साहब, आप हमें इतना ना हंसाया करें कि हम हंस हंस कर हमें कुछ हो जाए और मेरे घर वालों को इमरान खान की तरह धरना देना पड़ जाए। खान साहब के पास तो कोई माकूल वजह नहीं है, लेकिन हमारे पास तो होगी। ये कितनी ज्यादती की बात है। डैम सीरियस गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि हंसा रहा हूँ। वैसे गुफ्तगू पे हंसते हैं? नहीं, मैं उन्हें बताती हूँ राहिल साहब, एक्चुअली वो आपको नहीं हंसाते, वो मुझे हंसा रहे होते हैं। मैं क्यों हंसाऊंगा आपको? मैं तो कुछ बता रही वो एक्सपर्ट हूँ भाई, मैं सीरियस गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं आई एम डैम सीरियस पर्सन, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर वो उस पर हंसते हैं तो हमें उस पर इतराज होना चाहिए। और डैम भी काला बाग डैम सीरियस है। हाँ, डैम फुल सीरियस नहीं। हाँ, देखा, ये मुझे हंसाने की कोशिश करते हैं, ये चाहते हैं कि मैं हर टाइम तो हंसाने की कोशिश की जरूरत ही नहीं है। आपके सामने तो कोई माचिस जलाए आपके कह के निकल जाते हैं, लिहाजा आप तो पहले से ही हंसती रहती हैं। मैं हर वक्त हंसती रहती हूँ, क्योंकि इसके बावजूद इनका शुक्रिया कि ये शो देखते हैं, इसका शुक्रिया इनका। सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमें हमारे शो को देखते हैं और हमें फीडबैक भेजते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं और समझते हैं कि हम कमेंट्स भी पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे वही मैसेज इंक्लूड करते हैं जो आप हमें इनबॉक्स करते हैं। अभी हम कुछ बात करेंगे, आज की एक नया सेगमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं। आपकी इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा सेगमेंट शुरू करना चाहती हूँ। इजाजत। हम चाहते हैं कि जो इंटरेस्टिंग तस्वीर होती हैं, हम बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो उन पे हम कुछ गुफ्तगू किया करें। खबरें तो हम डिस्कस करते ही हैं, तो आज की तस्वीर हमने जो शामिल की है ये आप भी देखिए। और सुभान अल्लाह, वाह 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 साहब। जी हाँ भाई, वाह वाह वाह। ये कहाँ से लिया साहब? ये अपने घर के मीटर की तो नहीं ले ली? बिजली के मीटर। मेरा फोन पहचानिए, ये वाला मेरा फोन है। ये है आपका एक फोन, ये भी है जो असल में एक्टिव है, वो यही फोन है। दूसरा तो आपने रखा हुआ है ना ऐसे नमूने। ये देखे रहो साहब कि बिजली के मीटर पे उन्होंने अपना, किसी साहब ने अपना मोबाइल, जाहिर बात है साहब नहीं लगाया होगा ना, खातून तो कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकती। बिल्कुल, उन्होंने डायरेक्ट मीटर पे अपना, ये बिजली चोरी शुमार होगी कि नहीं? मासूम सी चोरी है यार, ये एक बहस, मासूम सी चोरी है। तो कोई और मासूम चोर आ गया, वो इनका मोबाइल उठा के ले जाए तो फिर? नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो परे बैठा होगा। अच्छा, पार्क में बैठा होगा, खंबे के नाल बैठे। ऐसा नहीं है। अच्छा, ये भी हो सकता है ये खुद मीटर रीडर का फोन हो। हाँ, ये भी हो सकता है। वो तस्वीरें लेते हैं ना आजकल उसकी मीटर की, तो उसने अपना मोबाइल इसी में लगा दिया हो, ये भी हो सकता है। ऐसा भी। लेकिन ये तरीका कितना खतरनाक है जी, कि आपने ये डायरेक्ट मीटर से तार लेके उससे मोबाइल चार्ज कर। और वो जो बिजली की फ्लक्चुएशन होती है उसकी वजह से ये भी तो हो सकता है ना कि मोबाइल फोन का जो बोर्ड है वो ही डिफ्यूज हो जाए, वो ही खत्म हो जाए। हाँ जी, ये भी हो सकता है। वैसे यार वो पिछले दिनों आपने पढ़ा, डॉन स्टोरी थी KPK में, वो 3 अजला है, उसको उन्होंने नाम भी दिए थे। वहाँ पे वो ये गैस चोरी कर रहे हैं जी,
गैस चोरी कर रहे हैं और वो महकमा ये जो हमारा सुईनाद गैस पाइपलाइन लिमिटेड वो बेचारा मजबूर है, इसलिए कि हुकूमत कह रही है कि वो चाहे यहाँ से निकल जाए, हमारा सबसे पहला हक है। गुजारिश है गैस वाल किधर तोड़ गई और इसका आपका सबसे पहला हक पता क्या है? तो मासूम सी चोरी है भाई, वो गैस चोरी कर रहे हैं, कुंडे डाल के एसी चलाते हैं। इस चोरी को भी पहली 2 चोरियों में शामिल किया जाए जो चोरी शुमार नहीं होती। किताब की चोरी और दिल की चोरी। ओहो, बड़ी खूबसूरत चोरियों की बात कर रहे हैं आप, लेकिन आप किताब की बात छुपाना चाहते हैं। आपके पास एक किताब है जो आज आपने हमें सुनानी है। आज की किताब साहब जी उनको सब जानते हैं, सोफिया बेदार। और इनकी किताब है जी, शायरी की किताब है। शायरा आपको पता है, बहुत अच्छी शायरा हैं। ताराज किताब का नाम है जी। इसमें उनकी गजलें हैं, उनकी नज़में हैं। और तो सब आपने सुना हुआ है शायरों में भी। तो जी बड़ी सोशल है माशाल्लाह, और कॉलम भी लिखती है। और सोशल एक्टिविटीज में भी आप इन्हें अमूमन देखते होंगे। डिप्टी डायरेक्टर है। हाँ, ये हमारे महकमे में इत्तलात से वाबस्ता। इनके वालिद साहब बहुत अच्छे, यानी पूरी फैमिली सहाफी और अदीबों की फैमिली है। अब्दुल्ला अदीब साहब, इनके वालिद साहब माशाल्लाह बहुत बड़े। लेडीज को वैसे ही काम बहुत होता है, मतलब घर के काम भी मैनेज करने, साथ में ऑफिस में भी काम करना, जैसे आप कह रहे हैं कि डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो उसके साथ इतना टाइम मिल जाता है कि इतनी मेहनत तलब किताब लिखना। कामयाबी है ना जी, इनके अंदर हुनर इतना है कि लिखती हैं, तकरीबात में पाई जाती हैं, इस्लामाबाद तक मुशायरों में पाई जाती हैं, शहर में पाई जाती हैं। और इनके मुतालिक हमारे सवाल पूछ के बताइएगा जरूर, टाइम कैसे मैनेज करते हैं? पूछ लूंगा मैं, फिर मैं बताऊंगा। खालिद शरीफ साहब हमारे मारूफ शायर जो हैं, उन्होंने इस किताब पे फ्लैप लिखा है और उन्होंने इनके बारे में लिखते हैं कि उर्दू जुबान के शेरी उफक पर इस वक्त जो चंद शायरात जगमगा रही हैं, उनमें सोफिया बेदार एक रोशन तर सितारा है। असरी महरूमियों का बयान हो या अपनी जात के ताराज होने का दुख, इसके इजहार के लिए सोफिया का अपना ही अंग और रंग है। अच्छा, मैं इनकी कुछ शेर भी आपको सुनाऊंगा। उससे पहले मुनीर न्याई साहब, मरहूम तो हम नहीं उन्हें कहते, वो जिंदा रहने वाले शायर, क्या मजेदार शायर थे। उन्होंने भी इनके बारे में इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा सोफिया की शायरी में एक ऐसा तहय्युर है जो मुझे अपनी इसी अनदेखी दुनिया के करीब कर देता है जहां दीवारों के साथ उदासी की अबाबिलें चिपकी हुई हैं। क्या कमाल। न्याय साहब का अपना अंदाज। और खुर्शीद रिजवी साहब ने भी, है ना जी, अंदर खुर्शीद रिजवी साहब ने भी, ये चूंकि जिसे कहते हैं ना पक्की चिट्ठी शायरा, तो मन्नी परवन्नी शायरा, इस लिहाज से तमाम शायरों ने जो सीनियर है उन्होंने इनके बारे में बड़े अच्छे ख्याल। इलाके का नाम लिया आपने, ये जो पक्की ठट्ठी नहीं का समनाबाद में जो पक्की ठट्ठी का बीबी, क्या अब आपकी इजाजत हो तो मैं मतलब भी बता रहे मुझे। पक्की, अच्छा, मजबूत सीमेंट की तरह, सही, ऑथेंटिक, ठीक है। और इसमें जी इनकी मैं सोफिया बेदार की गजल के कुछ शेर आपको सुनाना चाहूंगा। इरशाद। जात के खौल में धुनी सी मचा रखी है, जात के खौल में धुनी सी मचा रखी है, घर के अंदर ही कहीं आग लगा रखी है। वाह 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 वाह। छत है पिंदार की, आंगन है मोहब्बत वाला, छत है पिंदार की, आंगन है मोहब्बत वाला, और दीवारे वफा हमने उठा रखी है। वाह वाह वाह, दीवारे वफा। सारी दुनिया के मुकाबिल ये तेरी ख्वाहिश ने, सारी दुनिया के मुकाबिल ये तेरी ख्वाहिश ने, कामयाबी में मेरी आग लगा रखी है। और एक शेर सुनिएगा कमाल। एक तो साया नहीं सर पे हमारे कोई, एक तो साया नहीं सर पे हमारे कोई, उस पे हालत भी यतीमों सी बना रखी है। तो ये है जी सोफिया बेदार की किताब ताराज। और ये था उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, इससे पूरा जिंदगी को अगर शुमार करूं, हाँ, वसल के पल शुमार करती। वाह वाह, जिंदगी के, ये आपका शेर है? नहीं, ये सोफिया का शेर है। जिंदगी को अगर शुमार करूं, वसल के पल शुमार करती। ये मुझे साहब जो कहा है कि तुझे निकाल के देखा, नज़में, गजलें, क्या बात है। ये हमारे जो चंद जो शायरा नहीं, शायरात हैं या शोरा हैं, उनमें इनका शुमार होता है। और जिस तरह से इन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जैसे आपने बड़ा मुनीर न्याई साहब ने कहा, खालिद शरीफ साहब की राय, खुर्शीद रिजवी साहब की राय, ये हमारे लिए चूंकि आज की किताब इसलिए भी अहम हो गई
کہ یہ ایک اور اپنے اقدار پہ یقین رکھنے والی ویلیوز پہ، مورل ویلیوز پہ، معاشرتی اقدار پہ یقین رکھنے والی شاعر ہے جی. کیا بات ہے ماشاء اللہ. That's so great. لیکن ابھی کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ہو رہا ہے ختم، تو ہمیں آپ سے اجازت لینی ہے، نہیں تو ہم اس کتاب پر مزید گفتگو کرتے. اس لیے رؤوف طاہر، گل نوخیز اختر اور سعدیہ کو آج کے وارننگ شو سے دیجیے اجازت. کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.